Good morning to all. Morning, sir. Good morning. Okay. Today we start from voltage divider biasing. So that one is a circuit we are discussing in last class. So we solve a numerical problem here. So in this question, we have to determine DC bias voltage VCE and current IC. We have to calculate VCE and IC. So these two are Q points. These two are known as Q points. So in this question, we have to calculate Q points. Of course, we can also put Q here. VCEQ, ICQ. So IC and ICQ both are same things. Means when there is no input, the value of IC is ICQ. When there is no input, the value of VC is a VCQ. So both are same things. So, but here we also in second question of same figure, we calculate stability factor, and in third part, as Beno asked me in last days to draw the DC load line. In third part of this question, this is a combination of three questions is here. Draw DC load line, draw, sorry, here I write here. Draw DC load line and locate Q point. So we will do this question. So this question is now three questions. First question, to calculate Q points. This is our first question. Second question, find the stability factor. And third question is to draw the DC load line and locate the Q points. So it is voltage divider biasing. So we do all these three questions now today. So this is a voltage divider bias. So इसी का हमने नाम एक और नाम बताया था कि it is also known as self bias. So it is the most popular one. So now here capsters we don't use capster here. Capster कोई मतलब नहीं रहा है. Capster को हमने open हटा दिया. ठीक है. Now this is the input loop. At input of transistor, sorry, this is not input. This is the input of transistor. ये transistor का हमारा input है. तो हम इतने portion का equivalent circuit लेंगे. So by using Thevenin's theorem we discussed in last class. So we find the equivalent voltage VTH, or sometimes it is known as ETH. This is the equivalent voltage. It means we are at here. It is a base. Base को कितना equivalent voltage दिख रहा है input में? तो वो base को equivalent voltage क्या दिखेगा? जो यहाँ पे voltage हो और यहाँ पे voltage क्या होगा? ये total voltage 22 इन दोनों में divide हो रहा है, this and this. तो VTH हमारा हो जाएगा 22 into 3.9 kilo ohm divided by 39 plus 3.9. That is VTH or ETH, and we can calculate. In last class, I think it is something around 2 volts. Then we calculate RTH. So RTH is a parallel value of R1 and R2. R1 और R2 का जो parallel value है वो हम होगा R1 parallel R2. So what will be the equation? R2 into R1 divided by R1 plus R2. This is R1 and this is R2.
So we can find the RTH, and this value comes to 3.55 kilo ohm. So this first voltage divided by thing, we calculate VTH or ETH. The formula is VCC into R2 divided by R1 plus R2. RTH R1 पैरेलल R2, इन दोनों का पैरेलल वैल्यूज हम ले लेंगे, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी 3.55 किलो. एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? चलो भाई, अब इतना करने के बाद हमारी इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगी. तो हाउ वी मेक इक्विवेलेंट सर्किट हियर. Here is a transistor. Sorry. Transistor RC or RE. These are same. What we just like this. This is RC and this is RE. Now here base, and of course RC is connected with VCC. Here base, so this portion is replaced by VTH and RTH. So here is the equivalent resistance. That equivalent resistance is RTH and equivalent voltage. And this equivalent voltage, and here is ground, here is ground. This equivalent voltage yes, here is equivalent voltage VTH. Upper plus, niche minus, and this is connected with ground. This is connected with ground. This is the VTH. VTH. Now this is simple circuit. So here is some little complex circuit here. Now here is circuit. Again we have to do what we do previous. We applied KVL at input loop. This is our input loop. So when we apply KVL, so what will be this plus VTH current is here IB so minus IB into RTH, and here is a potential between base and emitter. This potential is a minus BE voltage between base and emitter, and here is current is IE. So this is minus here is minus IERE. IERE, and this is equal to 0. So applying KVL at here, then we find the value of IB. So same equation में हम IB value find करेंगे. Here is IE, so IE के place में हम रख देंगे 1 plus beta IB. In place of IE, we put IE is a 1 plus beta IB. So here we can find the value of IB, and we do all the calculation as earlier. So what will be the value of IB? Now solving that equation, so IB becomes VTH minus voltage between base and emitter divided by RTH plus 1 plus beta RE. Okay. So now here we can find the value of IB, then we can find the value of IC. So IC is equal to beta IB. This is equation number 2.
and this is equation number 3, and the same way we find the equation number 4 by applying KVL at output load. Okay, now put the values here. Here is RTH. We can calculate RTH here. R1 parallel R2, it is 3.55 kilo ohm. We can calculate VTH or ETH, R2 into VCC, R1 plus R2, now it's become a 2 volt. Then we find the value of IV. So IB जो हमने क्वेश्चन में निकाला था उससे हमने IB निकाल लिया, and the value of IB is 6.05. Then we find the IC is equal to beta IB, beta is 140, now its value is 0.85, and by applying KVL at output loop we can find the value of VC. VC is at 12.22 as we did in a ammeter bias. So IC and VC, these are Q points. ये दो हमारे Q points हैं. So now it is the first part of this question. ये हम कर सकते हैं. First question is now complete here. So we find the IC and VC. Now second part, to draw the DC load line. हमें load line draw करना है. तो load line ध्यान रखिए, load line हमेशा जो है इसकी एक्सेस है. Here is at X axis it is a VC. At Y axis it is IC. So we have to draw the load line at output characteristics of common emitter configuration. So how we draw? We applying a KVL at output loop. तो आउटपुट लूप में जब KVL लगाएंगे तो इक्वेशन आ जाएगी. When you apply the KVL at output loop, equation is the VCC minus ICRC minus VCE minus IERE equal to 0. This is output loop. When you apply the KVL at output loop, VCC minus ICRC minus VC minus IE are equal to 0. So we know that IC and IE approximate same. So here to find the value at this x-axis, the x-axis is here. The x-axis को मैं मतलब to find the value at x-axis, so we have to put IC equal to 0. In this equation, put IC equal to 0. तो IC 0 तो करेक्टर करंट 0 है तो एमिटर करंट भी 0 होगी, क्योंकि क्या हो गया IC 0 मतलब क्या हो गया, हमने ओपन कर दिया. करंट तभी 0 होगी जब ओपन होगा, तो ओपन होगा तो फिर करंट तो 0 होनी है, IC 0 होगा तो IE 0 होगा. तो VCE की जो वैल्यू है इक्वल टू VCC. आप चेक कर लीजिए, इस इक्वेशन में IC 0 रख दिया, IC 0 देन IE 0, तो VCE की वैल्यू इज इक्वल टू VCC. तो हमें जो फर्स्ट पॉइंट मिल गया कि VCC इज अ 22 वोल्ट इन दिस क्वेश्चन, तो फर्स्ट पॉइंट हमें जो मिल गया ये 22 वोल्ट समवेयर हियर. वी फाइंड 22 वोल्ट समवेयर हियर. अगेन टू फाइंड द सेकेंड पॉइंट, क्योंकि हमें लाइन ड्रा करना, लाइन ड्रा करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए. सेकेंड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने क्या कर दिया, एट दिस डायरेक्शन, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस से पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू कर देंगे 0. तो एक्स इज VC, तो VC की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में 0 पुट कर दिया. ठीक है. तो व्हेन VC इज अ 0 देन IC, ध्यान रखिए IC और VC 0 मतलब VC हमारा सर्किट हो गया. तो IC क्या हो जाएगा, VCC डिवाइड बाई RC प्लस RE. Remember, IC and IE is approximate same. तो हम IC और IE को हमने सेम ले लिया. इस इक्वेशन में भी जो हमने आउटपुट की भी लगाया, इस इक्वेशन में भी IC और IE को हमने सेम ले लिया, बिकॉज दे आर अप्रोक्सीमेट सेम. वेरी लेस डिफरेंस इज हियर. ठीक है. तो IC इज अप्रोक्सीमेट सेम, तो IC इज VCC डिवाइड बाई RC प्लस RE. तो नाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IC. ध्यान रखिए ये IC सैचुरेशन है और ये जो VC निकाला है VC कट ऑफ निकाला है. तो IC सैचुरेशन
तो VCC निकाला हमने 22 डिवाइड बाई RC is a 10 kilo ohm and RE is a 1.5 kilo. So its values is 22 divided by 22 divided by 10.1.5 करिए तो ये आ जाएगा 22 डिवाइड बाई 11.5 किलो। निकाली वैल्यू कितनी आ रही है? आई एम जस्ट टेकिंग फ्रॉम माय मोबाइल फोन। (22 divided by 11.5). Now it's become a 1.91 milliampere. ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हियर समवेयर हियर इज 1.91 milliampere. Now we draw the line. So this line is a DC load line. Now we have to locate Q points. Q point क्या है हमारा? ये IC कितना है? 0.85 milliampere. Here is 1.91, तो हाफ इतना इसका लगभग 1 के आसपास आएगा। तो समवेयर हियर इज, अपने अंदाजे से हमने ले लिया, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0.85 मिलियम्पियर, हाफ से थोड़ा कम। ठीक है, और फिर डैश डैश लाइन करके हमने इसको आगे बढ़ा दिया। तो हियर इज Q पॉइंट। ठीक है, और ये जो दूसरा पॉइंट होगा यहाँ नीचे वाला, दिस इज अ VC कट ऑफ हमने क्या निकाला है? सॉरी, VC हमने निकाला है, VC इज 12.22 वोल्ट। तो दिस इज ग्रेटर देन हाफ वैल्यू। ये 22 है टोटल, तो 22 के हाफ वैल्यू इज 11 से थोड़ा सा आगे होगा, तो 12.22। अंदाजे से आप कर दीजिए। ध्यान रखिए हमेशा Q पॉइंट जो होगा वो हमेशा लोड लाइन पे होगा, एंड इट इज नियरर टू मिड पॉइंट ऑफ लोड लाइन। ठीक है, जरूरी नहीं है मिड पे ही हो, बट नियरर टू मिड पॉइंट। तो नाउ दिस इज अ Q पॉइंट। ठीक है, तो हमने लोड लाइन ड्रा कर दिया, और Q पॉइंट की डायमेंशन क्या है? 0.85 मिलियम्पियर। IC जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, एंड VC कैलकुलेट किया इट इज 12.22 वोल्ट। तो दिस इज अ Q पॉइंट। और आप चाहो तो ऐसे ऐसे कर सकते हो, एक और बना सकते हो इसमें, इट इज ऑप्शनल। ये जैसे हमने कहा था, हमने आउटपुट कैसे ड्रा किया था? IB के डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमने IC और VC वैल्यू निकाली थी। तो हियर इज IB इक्वल टू, IB जो हमने निकाली है 6.05 माइक्रो एम्पियर। दिस इज IB, दिस इज Q पॉइंट। आप चाहो ऐसे एक लाइन खींच के सीधा ऐसे दिखा दो, हॉरिजॉन्टल से हमने दिखाया था आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो वी कैन लोकेट Q पॉइंट्स ऑन DC लोड लाइन। ठीक है, बोलो भाई बेनी, क्या प्रॉब्लम है? सर इसमें ये है कि जो हमने IB निकाला है वो तो हमारा इनपुट का है ना, तो फिर उसको आउटपुट के ग्राफ पे कैसे प्लॉट कर सकते हैं सर? बेटा हमने जो आपने इसका जो कॉमन मीटर का जब आपने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट किया था, आउटपुट कर्व, तो आउटपुट कर्व हमने कैसे प्लॉट किया था? इट इज कर्व बिटवीन IC एंड VC फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ IB। ठीक है, तो पहले हमने स्टार्ट किया था कि जब IB की वैल्यू 0 है तो देयर इज वेरी स्मॉल करंट, दिस इज लीकेज करंट ICO। फिर IB की डिफरेंट वैल्यू 10 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, तो हमने कर्व प्लॉट किया था 10, 20 एंड 14, 60। ठीक है, तो जब IB लेते हुए, हाँ, IB की डिफरेंट वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो Q पॉइंट आ रहा है, जब IB की वैल्यू क्या है 6.05, देन द वैल्यू ऑफ IC एंड VC इज अ Q पॉइंट। हालांकि आप चाहो इसको इग्नोर भी कर सकते हो, IB इज नॉट कंसर्न फॉर अस। ठीक है, तो लोड लाइन है, तो लोड लाइन के मिडिल में होना चाहिए, बट इट इज समवेयर इन मिडिल। जितना मिडिल में रहेगा उतना अच्छा रहेगा। और कोई प्रॉब्लम बताओ भाई? सर इसके लिए हम इसको कर सकते हैं क्या
1.91/2, नो 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 बेटा, नहीं नहीं, आपको क्यू पॉइंट्स लोकेट करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज, ठीक है। अब वो अंदाजे हो जाएगा, अंदाजे से नहीं करना हमें, तो ये आपको वैल्यूज फाइंड करनी है ना, दिस इज अ प्रॉब्लम, डिजाइनिंग प्रॉब्लम ये, ठीक है। तो और मतलब उनको आईसी और बीसी की इनपुट से वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी और हाँ, उसको प्लॉट हाँ, करके मालूम पड़ जाएगा कि वो क्यू पॉइंट लोड लाइन पे कहाँ बना रहा है। हाँ, क्यू पॉइंट लोड लाइन पे कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ठीक बताओ, सर, ठीक सर। आयुष एनी प्रॉब्लम? नो सर, सर ये तो तो दिस इज, कैलकुलेट ही होके आ गई थी ना इतनी तो, हाँ ये क्यू पॉइंट की कैलकुलेशन है, वैल्यू, हाँ ये तो कैलकुलेट ही होके आ गई थी। दिस इज कैलकुलेटेड वैल्यू। चलिए भाई, तो देर इज टू प्रॉब्लम वी सॉल्व। नाउ थर्ड प्रॉब्लम इसी में है कि स्टेबिलिटी फैक्टर। तो हाउ वी फाइंड द स्टेबिलिटी फैक्टर? तो स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, हमने इनपुट में केवीएल लगाया था, तो इनपुट में हमारा जो केवीएल था, क्या केवीएल था बताओ भाई, इनपुट में केवीएल when we apply the KVL at input loop, VTH माइनस IB minus IB I- RTH IB RTH minus माइनस BB BBE BE। बेटा मैंने यहाँ सबसे स्मॉल लेटर लिख रहा हूँ, बट ये कैप्स लेटर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। I माइनस E RE R E, ठीक है, ध्यान रखिए, E भी है, ये कैप लेटर है, बट हियर मुझे जल्दबाजी में मैं लिख दे रहा हूँ। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्टेबिलिटी फैक्टर बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। तो अगेन इसी इक्वेशन में हम क्या लिख दे रहे हैं, VTH माइनस IB RTH माइनस BE की वैल्यू जो कांस्टेंट है 0.7, ठीक है, माइनस अब IE की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, IB प्लस IC, IB, ध्यान रखिए हमने 1 प्लस बीटा IB नहीं किया है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, IB प्लस IC, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द क्यू पॉइंट, यही मिस्टेक, सॉरी स्टेबिलिटी फैक्टर। तो स्टेबिलिटी फैक्टर निकालने में बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि वे जनरली क्या करते हैं, IE की जगह पे तुरंत 1 प्लस बीटा IB लिख देते हैं, नहीं, बिकॉज द क्यू फैक्टर इज आल्सो डिपेंड अपॉन द IC, तो IC के टर्म को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इन प्लेस ऑफ IE की जगह पे हमने क्या लिख दिया, वो IB प्लस IC। तो फॉर्मूला क्या है क्यू पॉइंट्स का? The formula for, sorry, stability factor, the formula for stability factor is here is equal to 1 plus beta 1 plus beta upon 1 minus beta 1 minus beta beta upon DIB upon DIC, yes sir। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमें क्या निकालना है, स्पेशली DIB upon DIC निकालना है, ये दिस वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट। तो DIB upon DIC ध्यान रखिए, ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही निकालेंगे, बी वेरी केयरफुल। तो हमें इसको DIB upon DIC को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, VTH डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू IC, IC के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करिए, तो दिस टर्म इज कांस्टेंट 2 वोल्ट आया था, तो IC के से कंपेयर अगर डिफरेंशिएट करें क्या आ जाएगा, 0। नाउ हियर RTH DIB over DIC DIB upon DIC, ठीक, दिस इज अगेन 0 क्योंकि भी कांस्टेंट है। yes sir। अब हियर यहाँ पे आ जाएगा माइनस RE DIB upon DIC, DIB upon DIC, DIC ठीक, और इसकी जगह क्या जाएगा, हियर इज IC के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सिर्फ बचेगा RE, ठीक है, क्योंकि वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू IC, तो RE माइनस RE को कॉमन ले लेंगे सर, RE इज 0, ठीक है, इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन आ गया। तो DIB upon DIC की इक्वेशन क्या आ गई, बताइए भाई, व्हाट इज बिकम्स DIB upon DIC, minus RE upon RTH plus RE, क्या बेटा, minus RE upon RTH plus RE, यस, माइनस RE अपॉन RE प्लस plus RTH, RTH, ठीक है। तो ये हमारा हो गया DIB upon DIC।
अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर इज यस, स्टेबिलिटी फैक्टर यस इक्वल टू स्टेबिलिटी फैक्टर यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस 1 बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 140, 140 1 प्लस 40, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस, अगेन हम ब्रैकेट डाल देते हैं, सॉरी 1 माइनस माइनस बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये माइनस है, यस सर, दिस माइनस इज प्लस, ठीक है। तो 1 प्लस यस सर, बीटा कितनी वैल्यू है, सॉरी क्या हो गई 140, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 1.5 किलो ओम, आर की वैल्यू है 1.5 किलो ओम, ठीक है, डिवाइड बाई डिवाइड 1.5 किलो ओम प्लस 1.5 प्लस 3.55 किलो ओम, ध्यान रखिए किलो ओम में, ठीक है। अब ये वैल्यूज निकालिए कितनी आ रही है, तो दिस इज द स्टेबिलिटी फैक्टर। तो ध्यान रखिए 1 प्लस समथिंग एनी डिनोमिनेटर टर्म में, तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी फैक्टर की जो वैल्यू है वो हमेशा आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर लीजिएगा, 141 से कम ही होगी, सॉरी इट इज लेस देन 141, ठीक है। तो बिकॉज डिनोमिनेटर टर्म इज 1, हाँ डिनोमिनेटर टर्म आप वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो कैलकुलेशन इज देयर, बट इट इज ऑलवेज कम लेस देन 141। तो हमें पता था स्टेबिलिटी फैक्टर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होती है 1 प्लस बीटा। अगर हम स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 प्लस बीटा से कम आ गए तो मींस वी इंप्रूव सम स्टेबिलिटी, तो हमने यहाँ पे स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। निकल जाएगा ना बेटा, कैलकुलेट कर लीजिएगा ये वैल्यूज क्या आ रही है, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमने 3 पोर्शन कवर कर लिया है, प्लस स्टेबिलिटी फैक्टर अलग से आता है क्वेश्चन, एग्जाम में आता है फाइंड द स्टेबिलिटी फैक्टर। अगर थ्योरी का भी क्वेश्चन आता है, थ्योरी में भी आपको इतना ही करना है, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल आर सेम, बस न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करेंगे, थ्योरी में वैल्यू पुट नहीं करेंगे। नाउ वी गोस टू आवर 4, हाँ बोलो सर, एक बार जरा वो फिर से बता दीजिए, आपने जो बोला था कि लेस देन 141 वैल्यू आएगी, तो एक बार समझ नहीं आया बेटा। 1 प्लस बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस समथिंग आ रही है ना, डिनोमिनेटर टर्म इज ग्रेटर देन 1, तो वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1 प्लस बीटा, ठीक है। तो दिस सिंपल इंडिकेट इट इज इंप्रूव सम अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी जो हमारा प्रोवाइड करता है वो वोल्टेज डिवाइडर है। नाउ नेक्स्ट एंड जो वैल्यू आएगी सर हमारी, वो जो वैल्यू आएगी वो हमारी एस मैक्स की वैल्यू आएगी, यस की वैल्यू आएगी, हाँ यस की वैल्यू आएगी बेटा। आप कैलकुलेट कर सकते हो, वैल्यूज आपको सब गिवन है, हाँ सर 3.5 आ रही है, 3.3 का कुछ है, 3.311 आ रही है, हाँ 3.3 दैट इज वेरी गुड, ठीक, 3.11 इज वेरी गुड। तो इसका मतलब इट्स इंप्रूव द स्टेबिलिटी। नाउ लास्ट वाइसिंग है, तो सबसे इंपॉर्टेंट वाइसिंग यही थी, बट एग्जाम में लास्ट ईयर ये वाला क्वेश्चन आया था, दिस इज द कलेक्टर टू बेस फीडबैक बायस, कलेक्टर टू बेस फीडबैक बायस, ठीक है। या सिंपल करते हैं कलेक्टर फीडबैक बायस। तो दिस इज सर्किट, ये हमारी सर्किट है कलेक्टर टू बेस फीडबैक बायस की, ठीक है। Here is what we are doing, here is base and here is collector। तो बेस को जो हम इनपुट दे रहे हैं मींस here is current is base current IB and here is current IC, sorry IE is here and here is IC, sorry here is IC, कलेक्टर हमारा ये है, तो यहाँ पे जो करंट होगी वो होगी IC, ठीक है। तो कलेक्टर इज हियर, तो हियर करंट IC, हियर IE एंड हियर इज IB। तो IB कौन प्रोवाइड कर रहा है इसको, IB इज कमिंग फ्रॉम हियर,
ठीक है, क्योंकि ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर कभी डीसी को पास नहीं होने देगा, तो जो भी डीसी करंट आ रही है वो यहाँ पे आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, कलेक्टर से। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है कलेक्टर टू बेस फीडबैक बैक। कलेक्टर इज प्रोवाइडिंग अ बाइसिंग या कलेक्टर इज प्रोवाइडिंग अ बेस करंट। ठीक है, तो बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे करंट क्या होगी, हियर दिस करंट, अब ये करंट क्या होगी, प्रीतम बताओ भाई, ये करंट क्या होगी, now this current is a, here is IC and here is IB, तो यहाँ पे जो करंट होगी वो IC प्लस IB, this current is IC plus IB। सर ठीक है, it is clear? कौन सी बात कर रहे हैं आप? बेटा ये करंट कलेक्टर जो इस रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट होगी वो IC प्लस IB, IC because plus IB। because IC is going to downward here and IB is coming here, तो जो ये वोल्टेज है BCC वाला वोल्टेज, 10 वोल्ट वाला वोल्टेज, वो क्या सप्लाई करेगा, IC प्लस IB दोनों सप्लाई करेगा। ठीक है, तो IC इज अगेन, तो ओनली वन डिफरेंस ध्यान रखिए, केबल मोबाइल लगाना, इनपुट में केबल, आउटपुट में सब कुछ सेम है, बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो करंट होगी वो होगी IC प्लस IB। ठीक है, नाउ अप्लाइंग केबल एट इनपुट लूप, इनपुट लूप हमारा ऐसे होगा ये। ठीक है, तो RC जो ये वाला रजिस्टर था RC रजिस्टर भी अब इनपुट में आ गया। अब हमें कुछ भी नहीं सोचना, हम सिंपल केबल लगाएंगे। इनपुट के में केबल कैसे लगेगा, VCC माइनस जो RC रजिस्टर है उस पे जो करंट आ रही है IB प्लस IC इंटू RC माइनस IB RB माइनस VBE माइनस IERE इक्वल टू G। नाउ दिस इज इनपुट लूप। ठीक है, ये पूरा इनपुट लूप हो गया। ये हमारा दिस रेजिस्टेंस इज, ये RC रेजिस्टेंस है, ये RB रेजिस्टेंस है, ये RE रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल वही था जो हमने अभी तक लिया है, दिस पोटेंशियल इज वोट पोटेंशियल बिटवीन बेस एंड एमीटर। ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही कर देंगे। ये इनपुट में केबल लगा दिया, क्वेश्चन नंबर 1। फिर यहाँ से हमने निकाला IB की वैल्यू। IB कैसे लिखेंगे, जब यहाँ पे IE की जगह पे 1 प्लस बीटा IB रख दो और IC की जगह पे बीटा IB रख दोगे तो सारे इक्वेशन आ जाएंगे इसके टर्म में। इक्वेशन क्या हो जाएगी, IB बिकम्स, एंड ऑफ कोर्स वी कैन अज्यूम IC एंड IE इज सेम, बिकॉज दोनों का जो वैल्यू है लगभग सेम होगा। डेसिमल के सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट के बाद डिफरेंस दिखेगा, तो IC एंड IB सेम कर देंगे। आप डिफरेंट भी कर सकते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। तो टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन वी आर पुटिंग द वैल्यू सेम। So now this is questions become, यहाँ से हमने निकाल लिया IB, then we can find the IC is called the beta IB, then we find the VC is the applying cable at output loop same वैसा है जैसा पहले जैसा है, but only difference is here the current across this register is the IC plus IB। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम बताइए भाई, यहाँ पे वेन्यू अटेंडेंस ले लेना आप। ले ली सर। हाँ, एनी प्रॉब्लम बेटा टिल नाउ। हाँ, अब बेटा लास्ट ईयर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया था मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लास्ट ईयर एग्जाम में एक रजिस्टर यहाँ पे और जोड़ दिया था। ठीक है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया था और इसको ग्राउंड कर दिया था। ठीक है, 2 रजिस्टर लगा दिए थे और बीच में यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया। तो आपको पता है कैपेसिटर कोई मतलब नहीं रह गया, तो ये दोनों रजिस्टर सीरीज में आ गए। तो RB जो रजिस्टर है, तो दिस इज द दिस प्लस दिस, तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया था, बाकी यहाँ पे कोई उसका खास रोल नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट RB की वैल्यू। हाँ, RB मतलब दोनों रजिस्टर सीरीज में आ गया ना, जहां पे भी कैपेसिटर उसको हटा दिया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजिस्टर बाइसिंग। यस प्लीज। ये जो आपने इधर 4.41 के बाद सर IB लिखा है क्या? 4 पॉइंट
4.1 के बाद आगे क्या लिखा है? नहीं, नीचे हाँ। जब सॉल्यूशन में उसमें 4.41 के बाद आई भी जो लिखा है सर, उसने उसको कैसे करा? एक बार वो मतलब इक्वेशन 1 से ही इनपुट लूप की निकाला हाँ बेटा, ये यहाँ से बात करो ना, इक्वेशन नंबर 1 से आई भी निकाली हमने, ठीक है, इक्वेशन 1 बस लिखा था ना हमने, इक्वेशन 1 हाँ इनपुट लूप से, हाँ इनपुट लूप में ही इक्वेशन नंबर 1 से आईसी की वैल्यू रख दो, बीटा आएगी, तो आप ये वैल्यू इक्वेशन आ जाएगी। जब इन्हें इक्वेशन 1 ऊपर 1 लिखा था ना, तो आईसी और आईवी की वैल्यू सेम ले लिया था हमने, आईसी एंड आईवी की वैल्यू हमने बीटा ले लिया, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर आ जाएगी। ठीक है, आपको इक्वेशन मत याद करो, बस सिंपल आप केवीएल लगाना शुरू करो, अप्लाइंग केवीएल एट इनपुट लूप, अप्लाइंग केवीएल एट आउटपुट लूप, फाइंड द वैल्यू ऑफ आईवी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ आईसी। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जितने भी हमारे ट्रांजिस्टर बाइसिंग के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो इतने ही न्यूमेरिकल्स हैं, और मैंने आपको एक शीट दिया हुआ है न्यूमेरिकल्स की, आपके ग्रुप में भेज दिया है, तो उसमें डीसी लोड लाइन के भी न्यूमेरिकल्स हैं, आईसी के भी न्यूमेरिकल्स हैं, अब बाइसिंग के भी न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, और तो आप उसको क्वेश्चंस करिए और जहां पे भी प्रॉब्लम से पूछिए। तो बेटा टेस्ट कब देना है आपको बताइए? मंडे टेस्ट ले लें, ठीक है, मंडे टेस्ट लेंगे। तो और हम ये काम करेंगे कि जो टेस्ट होगा दिस टाइम हम थोड़ा और इनोवेटिव टेस्ट लेंगे, और ओनली न्यूमेरिकल विल बी देयर। तो ट्रांजिस्टर बाइसिंग के जो न्यूमेरिकल्स हैं, रोड लाइन के न्यूमेरिकल्स हैं, क्यू पॉइंट्स के न्यूमेरिकल हैं, यू आर गेटिंग अ टाइम टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स एंड वी विल टेक द टेस्ट ऑन दिस। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसका सेकंड पार्ट है इस यूनिट का। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू फॉर टुडे, वी आर एंडिंग हियर।